अस्सलाम वालेकुम। हाँ स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक रहेगा रूट मॉडिफिकेशन। इससे पहले हम इस मैन का कंसर्न को यहाँ पर डिटेल डिस्कशन में लें, हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताते चलें कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के दौरान रूट क्या है ये जान लिया। सो आई एम रिकैपिंग हियर। रूट हम कहते हैं दैट इट इज़ नॉन ग्रीन descending cylindrical part of a plant which normally grows towards soil. तो एक सिंपल सी डेफिनेशन रूट की कि एक नॉन ग्रीन पार्ट है, डिसेंडिंग एक्सेस है जो नॉर्मली सॉइल की तरफ ग्रो करता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता दैट इट शुड बी पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड ऑल्सो द रूट्स ग्रो टुवर्ड्स द वाटर, दे आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक बट दे ग्रो अवे फ्रॉम द सॉइल, सो दे आर कंसिडर्ड एज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। बट अदर फीचर्स ऑफ द रूट जो हमने पिछले लेक्चर्स में लिए, दैट रूट्स आर डिवाइड ऑफ these leaves, they don't possess nodes and internodes, they don't possess buds, their the root branches जो है उनका जो origin है, the origin is endogenous. Now here, before I will take the topic, I will take here the root system. तो root system को समझने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की रिप्रोडक्शन के बारे में जान लें। As you know, the flower is the reproductive organ in case of an angiospermic plant. और एक flower में the sex organ, the male sex organ is the stamen, consisting of a filament and the anther, and the female sex organ is a carpel or the pistil, which possesses three parts, that is stigma, style, and the ovary. This bulbous portion is the ovary. And in your 10th class you have read about this, that inside the ovary, over the cushion, that is the placenta, there may be one or more some pinhead like structures, and these structures are called the ovules. तो एक ओव्यूल भी हो सकता है एक ओवरी में, बहुत सारे, जैसे कि पॉपी में बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, जैसे कि मैंगो में एक ही ओव्यूल होता है, तो एक ही ओव्यूल यहाँ पर लेंगे। नाउ दिस ओव्यूल possesses the female gamete, तो फीमेल गैमीट होता है ओव्यूल में। Now when there is pollination, that is the transfer of pollen grains from this anther to the stigma, whether it is self-pollination or cross-pollination. Now the pollen grain germinates, produces a pollen tube, and this pollen tube pierces and enters into the ovule, while it drops the male gametes. One of the male gamete combines with this female gamete to produce the zygote. Now this zygote later on develops into an embryo. इसी एम्ब्रियो के बारे में मुझे आपको बताना है, क्योंकि तब ही हम रूट सिस्टम को अच्छी तरह समझ पाएंगे। Now this embryo is present within the ovule, और जो दूसरा मेल गैमेट, क्योंकि पोलन ग्रेन में दो मेल गैमेट्स होते हैं, वो एक डिप्लॉइड सेंट्रल सेल के साथ एक सेल बनाता है, एक न्यूक्लियस बनाता है, जिसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और एंडोस्पर्म मदर न्यूक्लियस, या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट इज पेन। दैट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू द न्यूट्रिटिव टिश्यू, और ये न्यूट्रिटिव टिश्यू इस एम्ब्रियो के बाहर रहता है, एंड द ओव्यूल वॉल देन हार्डन्स टू फॉर्म द सीड कोट। तो मुझे यहाँ पर अगर हम देखेंगे, लेट दिस बी ए सीड, दिस सीड इज फॉर्मड out of the ripen this ovule, and it is inside the ovary. Ovary wall develops into a fruit. When this seed matures, this fruit matures, the seeds may come out and they are dispersed. Now अगर हम एक सीड लेंगे, एक सीड का बाहरी से सीड कोट्स होते हैं, टेस्टा टेगमेन, दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, अंदर कुछ न्यूट्रिटिव टिश्यू किसी किसी में, जैसे कि एंडोस्पर्मिक सीड्स में होता है, और एक जाइगोट डेवलप हो चुका है एक स्ट्रक्चर में, जिसे हम कहते हैं फ्यूचर प्लांट, दैट इज कॉल्ड द एम्ब्रियो।
इसी एम्ब्रियो के बारे में अगर हम लेंगे, यहाँ पर an embryo consists of an embryonal axis. This embryonal axis possesses on one side a dome-shaped structure. Below this dome-shaped structure, there may be two small outgrowths, or in some cases they may become larger. These are called cotyledons, and below this is the embryonal axis. Now, this embryonal axis possesses on one side a dome-shaped structure. This is called the pilumule. This pilumule grows into a shoot. Now here, this embryonal axis on other side possesses the radicle. This radicle grows into a root. Now here, these are the embryonal leaves, or we call them as cotyledons. The portion of the embryonal axis above these cotyledons, this is called the epicotyle, and the portion below these cotyledons, it is regarded as hypocotyle. तो यहाँ पर ये टर्म्स हमें यूज करनी है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ. So pilumule grows into a shoot and radicle will grow into a root. Now, as the radicle elongates, it forms the first root, and this root is called the primary root. So अभी हमने यहाँ पर समझा कि सीड जब जर्मिनेशन करता है स्टार्ट, तो एम्ब्रियो में जो रेडिकल पोर्शन होता है वो एलोंगेट करता है एंड इट फॉर्म्स द प्राइमरी रूट. नाउ इन सम प्लांट्स दिस प्राइमरी रूट परसिस्ट्स. तो अगर मैं इस तरह लिखूं यहाँ पर, प्राइमरी रूट परसिस्ट्स थ्रू आउट लाइफ, persists throughout life, then this primary root is known as the tap root. ऐसे प्राइमरी रूट को हम नाम देते हैं टैप रूट. लेकिन किसी किसी प्लांट में, जस्ट लाइक इन मोनोकॉट्स, इन सम मोनोकॉट्स, in almost all monocots, this radicle may develop into a short primary root, but this primary root is not persisting. That means we can say that if this primary root is short-lived, कुछ ही दिनों के लिए रहता है, and it is not persisting or it may die out. So ऐसे को हम कहेंगे that in them the roots for performing the important primary functions, they may arise from other parts of the plant. They can arise from the lower nodes of the stem, they can arise from the internodes, they can arise even from the leaves, they can arise from anywhere, and these roots are called as adventitious roots. So क्यों ना हम यहाँ पर अब इस तरह लेंगे that in plants we have two types of root systems. Those plants जिनमें प्राइमरी रूट परसिस्ट करता है, तो अगर हम इस तरह लेंगे कि यहाँ पर प्राइमरी रूट परसिस्ट करता है, it elongates, it grows, it continuously grows and form also develops branches, that is the secondary roots. Then these secondary roots further develop the branches, these are called tertiary roots. Then these may further develop branches called quaternary or rootlets. So a system of root is formed, and this type of root system is called the tap root system. तो हमारे पास एक root system है, this is called the tap root system. अब ये tap root system, it is mostly present in dicots. यहाँ पर ये tap root system जो होता है, जिसमें एक primary root होगा जो कंटिन्यूअसली परसिस्ट करेगा थ्रू आउट द लाइफ, दो टाइप्स का होता है. सो टैप रूट सिस्टम यहाँ पर दो टाइप्स का है. कुछ पेरिनियल प्लांट्स में, पेरिनियल प्लांट्स बहुत सारे सालों के लिए रहते हैं, तो इन पेरिनियल प्लांट्स में
the primary root grows deeper and deeper, producing the lateral branches, and such a root system is called as a deep feeder root system. Deep feeder taproot system इसको कहेंगे जब पेरिनियल प्लांट्स में प्राइमरी रूट बहुत नीचे तक डीप लेयर्स तक चला जाता है सॉइल के, और साथ साथ ही सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स भी देता है। तो इसका दूसरा नाम है रेसमोस टैप रूट सिस्टम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेसमोस टैप रूट सिस्टम कहते हैं ऐसे टैप रूट सिस्टम को जो पेरिनियल प्लांट्स में होता है और ये बहुत अंदर तक सॉइल में चला जाता है। लेकिन कुछ प्लांट्स में जिनमें लाइफ साइकिल एक ही सीजन में कंप्लीट होता है, जिन्हें हम एनिमल्स कहते हैं। इन एनिमल्स देयर इज टैप रूट सिस्टम। जो टैप रूट है, प्राइमरी रूट है, वो थोड़ा सा जमीन के अंदर चला जाएगा, बट इट प्रोड्यूसेस द सेकेंडरी रूट्स और ये टर्शियरी रूट्स, और ये इसकी ब्रांचेस जमीन में या सॉइल में कम गहराई में फैलती जाती है, सरफेस के सॉइल सरफेस के साथ साथ ही फैल जाती है। तो ऐसे टैप रूट सिस्टम को हम नाम देते हैं सरफेस फीडर। सरफेस फीडर टैप रूट सिस्टम, और इसको हम दूसरा नाम दे देंगे साइमोस टैप रूट सिस्टम। तो यहां पर बेटा आपने दो टाइप्स के रूट सिस्टम देखे, साइमोस टैप रूट सिस्टम और दूसरा रेसमोस टैप रूट सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेसमोस टैप रूट सिस्टम वो टैप रूट सिस्टम होता है जो पेरिनियल प्लांट्स में देखा जाता है, और इनमें प्राइमरी रूट बहुत डीप चला जाता है और साथ साथ ब्रांचिंग करता है। सो ये एक प्लांट को डीप लेयर्स ऑफ सॉइल से फीड करता है, इसीलिए इसका नाम है डीप फीडर। तो इसका दूसरा नाम हम रखते हैं रेसमोस टैप रूट सिस्टम। तो कुछ एनिमल प्लांट्स में टैप प्राइमरी रूट जो है थोड़ा सा ग्रो करता है सॉइल में, लेकिन जो इसके सेकेंडरी रूट से फैल जाते हैं अंदर सॉइल के सरफेस के साथ साथ ही, ऐसे रूट सिस्टम को हम कहते हैं सरफेस फीडर टैप रूट सिस्टम। तो इसका दूसरा नाम है साइमोस टैप रूट सिस्टम। तो नटशल में आप अगर ज्यादा याद नहीं रखेंगे, थोड़ा सा रखेंगे कि वो प्राइमरी रूट जब रूट डेवलप होता है एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो के रेडिकल पार्ट से, उसकी एलांगेशन की वजह से, जिसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं। अगर ये प्राइमरी रूट एक प्लांट के साथ उसकी सारी लाइफ के साथ लाइफ तक रहेगा, सो इन अदर वर्ड्स वी मे से इफ दैट primary root is persisting throughout the life of a plant, such a root is called tap root। और उसकी ब्रांचेस और जैसे कि वो सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रांचेस देता है, सारे सिस्टम को हम कहेंगे टैप रूट सिस्टम। अब टैप रूट सिस्टम दो टाइप का है, रेसमोस टैप रूट सिस्टम एंड साइमोस टैप रूट सिस्टम। जबकि अभी हमने कहा कि कुछ प्लांट्स में रेडिकल तो एलांगेट होता है, प्राइमरी रूट बनता है, लेकिन ये प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होता है, कुछ ही दिनों के लिए रहता है, या तो परसिस्ट करता है शॉर्ट होकर वहीं पे, या खत्म ही हो जाता है। तो उनमें अभी हमने कहा कि उनमें रूट्स डेवलप होते हैं, रूट्स में डेवलप फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, दैट इज द पार्ट्स अदर देन द रेडिकल के और इसकी ब्रांचेस के बगैर जहां कहीं से भी रूट्स उग जाएं, ग्रो हो जाएं, these are called adventitious। Remember, adventitious is a Latin term। adventitious means extraordinary। तो ये extraordinary roots जो है किसी स्ट्रक्चर से भी उग सकते हैं अदर देन रेडिकल। तो यहाँ पर ये लीव्स से भी उग सकते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइलम आपने मैट्रिक में ही पढ़ा है, जैसे कि ये स्टेम से भी ग्रो हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोज में, रोज कटिंग हम ग्रो करते हैं तो वहाँ डायरेक्टली स्टेम ब्रांच से ही उगते हैं। तो इसी तरीके से ये कहीं से भी उगे ब्रांचेस से, तो ऐसे रूट्स को हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम ज़्यादा डीप नहीं चला जाता, तो उसे हम कहते हैं सरफेस फीडर। सो रिमेंबर द एडवेंटिशियस रूट सिस्टम इज सरफेस फीडर। नाउ यहाँ पर जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज द रूट मॉडिफिकेशंस। अब ये
रूट मॉडिफिकेशंस लेने से पहले हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे व्हाट डू वी मीन बाय मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशंस एज यू नो, अगर मैं यहाँ पर बता दूं तो उर्दू में अगर इसका तर्जम करें और उर्दू में इसे हम कहेंगे तरमीम, या इंग्लिश में सिनोनिम ढूंढेंगे, सो इट इज ए चेंज और वी कैन से इट इज एडिटिंग। तो यहाँ पर अगर कुछ जैसे कि आपको कभी क्लास में या फैमिली में कहा जाता है कि मॉडिफाई योर बिहेवियर, तो अपने बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज लाओ। तो यहाँ पर अगर हम इस मॉडिफिकेशन को लेंगे, सो इट वुड बी चेंज इन स्ट्रक्चर, चेंज इन फॉर्म। नाउ दिस change in structure or change in form is called the modification here, and that is for performing some special functions. Special functions करने के लिए अगर रूट अपना स्ट्रक्चर या फॉर्म चेंज कर रहा है, that is in addition to the functions which it is performing, तो उन चेंजेस को हम कहते हैं मॉडिफिकेशंस। तो यहाँ पर ये मॉडिफिकेशन दोनों टाइप के रूट सिस्टम्स दिखाते हैं। तो हम अब इसे डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में, दैट इज टैप रूट मॉडिफिकेशंस एंड एडवेंचरस रूट मॉडिफिकेशंस। तो इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे आज टैप रूट मॉडिफिकेशंस समझने का। तो फिर से मैं बोल दूं, थोड़ा सा ब्रीफली मैं जा रहा हूं क्योंकि वीडियो या ये जो लेक्चर अपने टाइम पे मुकम्मल होना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशंस मीन्स change in the structure, change in the form, for performing some functions, some special functions in addition to the normal functions or instead of the normal functions or primary functions which an organ is performing। तो यहाँ पर रूट जो है इसकी नॉर्मल या प्राइमरी फंक्शंस यही है कि एक तो ये प्लांट को फिक्स करता है और दूसरा ये एब्जॉर्प्शन करता है मिनरल सॉल्ट्स की और वाटर की। अब इन एडिशन इन दो फंक्शंस से, इंस्टेड ऑफ दीज टू फंक्शंस और समटाइम्स इन एडिशन टू दीज फंक्शंस, if the root has to perform some special functions, it should change its shape. Its shape may change, its structure may change, and that change is called the modification. तो यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी कहा हमारे पास दो टाइप के रूट सिस्टम्स हैं, टैप रूट सिस्टम और एडवेंचरस रूट सिस्टम। अब हम पहले यहाँ पर लेंगे टैप रूट सिस्टम की मॉडिफिकेशन जानिए हैं, जिसे हम कहेंगे टैप रूट मॉडिफिकेशंस। सम मॉडिफिकेशंस हियर द रूट इज अ टैप रूट, बट for performing some functions we may have some types of taproot modifications. Number one we will discuss here fleshy taproots. Fleshy taproots ये एक मॉडिफिकेशन है taproots की। दूसरा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर नोड्यूलेटेड taproots। नोड्यूलेटेड taproots तो यहाँ पर भी ये मॉडिफिकेशन है। तीसरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो आपको आगे चलकर नीट में भी पूछा जाएगा, दैट इज नेमेटोफोर्स। नेमेटोफोर्स जिसे हम रेस्पिरेटरी या ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं, रेस्पिरेटरी और ब्रीदिंग रूट्स। ब्रीदिंग रूट्स तो एक चौथा भी मैं ऐड करने जा रहा हूं यहां पर फॉर द पर्पस ऑफ नीट एटसेट्रा, जिसे हम कहते हैं बटरस रूट्स। बटरस रूट्स। तो ये चार टाइप्स की मॉडिफिकेशंस हम यहां पर देखेंगे। नाउ यहां पर अगर हम देखेंगे रूट जो नॉर्मल फंक्शंस करता है, दैट इज फिक्सेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स, बट इन एडिशन टू दैट इट इज परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। सो टू स्टोर द फूड here the structure of root has to be changed, और उसे हम कहते हैं मॉडिफिकेशन। और ऐसे रूट्स को हम कहते हैं फ्लैशी रूट्स, क्योंकि ये टैप रूट है तो हम कहेंगे इन्हें फ्लैशी टैप रूट्स। तो इसी तरीके से यहाँ पर रूट्स को कुछ जो फंक्शंस है अपनी वो तो करनी है। इन एडिशन टू दैट हियर द रूट इज परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन यू नो दैट changing the dinitrogen, that is the nitrogen gas, into the nitrogenous compounds is called nitrogen fixation. नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में फिक्स करना या चेंज करना कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाउ हियर
नेमेटोफोर्स रेस्पिरेटरी और ब्रीदिंग रूट्स, यहाँ पर गैस एक्सचेंज के लिए, जैसे कि आप जानते हो कि रेस्पिरेशन के दौरान गैस एक्सचेंज होता है, तो गैस एक्सचेंज के काम आते हैं ये रूट्स। तो not in elasticity, but in addition to the normal functions, primary functions, the root is helping for the gas exchange. We call them as nematophores, respiratory or breathing roots. Also, here this is giving the additional support. The buttress roots, जैसे कि रूट्स यहाँ पर अपनी नॉर्मल फंक्शंस के अलावा थोड़ा सा सपोर्ट भी देते हैं. So, in addition to perform these special functions, roots change their shape or structure or form. Then these are called modifications, root modifications, and we are discussing here these 4 types of root modifications. So first I am taking here fleshy tap roots. जैसे कि अभी हमने कहा, let us say ये एक प्लांट है, इसका एक ये टैप रूट है, ये इसके प्राइमरी रूट है, टैप रूट सिस्टम, ये सेकेंडरी रूट है इसके, ये इसके टर्शरी भी दिखाएंगे यहाँ पर. दिस इज अ टैप रूट सिस्टम. नाउ इफ दिस प्लांट has to store food and this work and this function is assigned to these roots. Now due to the accumulation of food, the root changes its shape, it becomes swollen, and we call such roots as fleshy roots. Clear? So fleshy tap roots वो tap roots होते हैं जो food store करते हैं. यहाँ पर कुछ examples या इसके कुछ types on the basis of shape हम लेंगे. एक जिसे हम कहते हैं conical roots, दूसरा जिसे हम कहेंगे fusiform, और तीसरा हम लेंगे यहाँ पर जिसे हम कहेंगे napiform, और चौथे को हम नाम देंगे tuberous roots. तो fleshy tap roots 4 टाइप के हम लेते हैं on the basis of shape. Simply, now almost all of you have seen some vegetables. You might have seen this vegetable, usually used as salad. Now this is the carrot, scientifically named as Dox carota. Now here this carrot possesses a reduced disc-like or discoid stem and a bunch of leaves, and these leaves are called the radical leaves because they appear that they are coming out from the root, and it possesses the tap root here, the primary root has stored the food and it has become of the shape of a cone that is broader at the base and narrowing towards the apex gradually. जब हम यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता से कम होना, जैसे कि कोनिकल शेप आपने 10th मैथ में मेंसुरेशन के दौरान भी ये शेप्स पढ़ी है. तो यहाँ पर कोन लाइक स्ट्रक्चर बनती है ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड. सच रूट्स आर कॉल्ड द कोनिकल रूट. सिंपल है ये. अब अगर हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे कि हम ले रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश रेडिश के एग्जांपल. इंग्लिश रेडिश, तो यहाँ पर फ्यूजीफॉर्म हम लेंगे, इंग्लिश रेडिश लेंगे एग्जांपल के तौर पर. अगर आपने ये देखा होगा, ये इंग्लिश रेडिश है, ये यहाँ पर इसका डिस्क लाइक दिस सिस्टम है और बुंच ऑफ दीज लीव्स, रेडिकल लीव्स इसमें भी है, छोटा सा रिड्यूस्ड सिस्टम है इसका, और ये इसका फ्लैशी पार्ट है. लेकिन इस फ्लैशी पार्ट में आप जरूर याद रखें कि इसके लोअर पोर्शन पे अगर आप देखोगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, दीज आर सेकेंडरी रूट्स. वो भी कभी कभी ब्रांचेस होते हैं, और टर्शियरी भी वो बहुत थिन रहते हैं. बट यहाँ पर अगर हम पहले शेप की बात करेंगे, द शेप it is broader or swollen in the middle with tapering base and the apex. तो apex और base पर ये थोड़ा सा टैपर करते हैं. ऐसी इस शेप को हम कहते हैं स्पिंडल शेप्ड. जैसे कि स्पिंडल शेप थोड़ा सा
फिश में भी होता है, बीच में थोड़ा सा ब्रॉडर और इसके अपेक्स और बेस पे थोड़ा सा नैरोवर। तो ऐसी शेप को दूसरी सूरत में दूसरा नाम हम देते हैं फ्यूजिफारम। तो फ्यूजिफारम fleshy roots are those roots which are broader in the middle and they are a little tapers or narrower at the base and the apex. Now here this root, this type of fleshy root is called the fusiform। लेकिन जो मुझे आपको जरूरी बताना है यहाँ पर जो ये सारा जो स्ट्रक्चर है, इट इज नॉट होल द रेडिकल, ये सारा प्राइमरी रूट ही नहीं है। इसमें से थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर जो इसका बेस है ये बना है हाइपोकोटाइल से। हाइपोकोटाइल जो मैंने अभी आपको एम्ब्रियो में दिखाया, बस इसीलिए दिखाया था क्योंकि मुझे यही कहना था कि ताकि आपको जब मैं यहाँ पर बोल दूं हाइपोकोटाइल तो आपको समझ आएगा। सो रेडिकल के ऊपर जो एम्ब्रियोनल एक्सेस होता है कॉटलिडन्स के नीचे, उसे हाइपोकोटाइल कहते हैं। तो यहाँ पर रेडिकल बना चुका है प्राइमरी रूट, लेकिन पूरा थोड़ा सा हाइपोकोटाइल भी इस रूट के साथ जुड़ता है और स्वेल हो जाता है। तो सारा का सारा ये रूट रेडिकल ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हाइपोकोटाइल भी है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए। तो यहाँ पर एक तीसरा हम लेंगे, दैट इज नेपिफॉर्म। हाँ, यहाँ पर एग्जांपल जो हमने ली है दैट इज रेफिनस सेटिवस। रेफिनस सेटिवस यूरोपियन रेडिश या इंग्लिश रेडिश को कहा जाता है। तो यहाँ पर हम तीसरा लेंगे नेपिफॉर्म। नेपिफॉर्म मीन्स पिचर शेप्ड। पिचर तो आपने देखा होगा, पिचर यूजुअली टॉप शेप्ड होता है। तो ये टॉप शेप्ड है, ये ऐसे। यहाँ पर जो रूट है वो स्वेल हो चुका है बेस पे, लेकिन अब रैप्टली ये टैपर करता है टुवर्ड्स द एपेक्स। यहाँ पर हमने देखा इट टैपर्स ग्रेजुअली मीन्स आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इट टैपर्स अब्रप्टली। तो यहाँ पर ये ब्रॉडर है, स्वोलन है, लेकिन जब नीचे हम जाते हैं एपेक्स की ओर तो ये जल्द से ही टैपर हो जाता है। यहाँ पर आप देखोगे कि थोड़े से यहाँ से थोड़े से थ्रेड लाइक से, दीज आर द सेकेंडरी रूट्स। यहाँ पर आप टॉप लीव्स इसको देखोगे तो दीज आर रेडिकल लीव्स। फिर से मैं यहाँ पर बोल दूं, एक्चुअली लीव्स यहाँ पर रेडिकल से नहीं उगते हैं, बट दे अपीयर दैट दे आर अराइजिंग फ्रॉम द रेडिकल, बिकॉज सारी को हम रूट कहते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिस्क्वाइड ग्रीन पोर्शन यहाँ पर देखोगे, दैट इज द सिटम with reduced nodes and internodes. This is the example you have seen. This is commonly used in Kashmir as vegetable. This is called Brassica rapa. Brassica rapa शलगम कहते हैं इसे। तो ये Brassica rapa या कशस में गोगजिश वनन। तो यहाँ पर ये these are the English radish मुज, और ये कैरेट गाजर इसे कश्मीरी में बोलते हैं। तो these are common vegetables which we use at our homes। तो यहाँ पर इजीली हम इनको याद भी रख सकते हैं इनकी शेप। दिस इज कॉनिकल शेप्ड, दिस इज स्पिंडल शेप्ड, दिस इज फ्यूजिफॉर्म। लेकिन आप याद रखेंगे इस कॉनिकल में हाइपोकोटाइल साथ नहीं होता है, लेकिन इस फ्यूजिफॉर्म में और नेपिफॉर्म में थोड़ा सा हाइपोकोटाइल भी होता है। तो यहाँ पर इस रेडिश शलगम में भी, टर्निप जिसे हम कहते हैं, इसमें भी थोड़ा सा इसमें हाइपोकोटाइल है और बाकी जो प्राइमरी रूट है। तो तीसरा जो यहाँ पर हम ले रहे हैं चौथा, दैट इज ट्यूबरस रूट्स। तो यहाँ पर इसको तो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन एग्जांपल के तौर पर हम याद रखेंगे 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट, दिस इज साइंटिफिकली कॉल्ड एज Mirabilis jalapa। Mirabilis jalapa। अगर आप इसमें देखेंगे जो इसका प्राइमरी रूट होता है या टैप रूट होता है, वो स्वेल हो जाता है, वो फ्लैशी हो जाता है, बट द रूट टेक्स इरेगुलर शेप, कभी ऐसी शेप कभी ऐसी शेप। तो कोई खास शेप नहीं बनती है रूट की जिस पर हम इसका नाम रखते। तो ये एक ऐसी शेप होती है जो पोटैटो जैसी होती है, क्योंकि पोटैटो को हम ट्यूबर बोलते हैं। तो ऐसे रूट को हम बोलते हैं ट्यूबरस रूट्स। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे मॉडिफिकेशंस। तो पहली मॉडिफिकेशन जो हमने ली, फ्लैशी टैप रूट्स। द मॉडिफिकेशन इज ड्यू टू द परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन दैट इज स्टोरेज ऑफ फूड, द रूट में बिकम
cone like, it may become spindle shaped, it may become pitcher shaped, or it may become of any regular shape. Then they have been accordingly given the names. So next अगर हम लेंगे यहाँ पर, that is nodulated roots. Nodulated roots. Nodulated roots की बात करें तो हम एग्जाम्पल के तौर पर फैमिली लिग्यूमिनोसी या सब फैमिली पैप्लियोनेटी के अगर कुछ मेंबर्स लेंगे, जैसे कि पी पाइसम स्टेमा, या अगर आप अरेकस हाइपोजिया लेंगे, ग्राउंड नट, अरेकस हाइपोजिया ग्राउंड नट को लेंगे, तो अगर हम इसके टैप रूट सिस्टम को देखें, चलिए ये ग्राउंड सरफेस और इसका टैप रूट सिस्टम दिखाएंगे. दिस इज इट इज प्राइमरी रूट, दिस इज द मेन रूट, इस पर ये ब्रांचेस सेकेंडरी रूट्स, तो ये टर्शियरी रूट्स, कुछ थोड़ा सा मैं दिखाऊं यहाँ पर. Now as this root system is formed, now here it is performing a special function that it has to convert nitrogen into nitrogen compounds, especially it is getting converted into ammonia, then it changes to ammonium, which gets converted into amino acids, जिसके फिजियोलॉजी पोर्शन में हम ये नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे. लेकिन यहाँ पर इसे ये परफॉर्मेंस करनी है, so it develops some knot-like structures. These are called tuberculous, or these are called nodules. Mostly nodules are found on the secondary and tertiary roots, but in some cases primary roots may also develop these nodules. Now these nodules are developed in coordinates in cooperation with a bacterium that is of genus Rhizobium. For example, Rhizobium leguminosarum. Rhizobium bacteria enters these cortical cells, and then here a knot is formed, then it is called the nodule, and millions of these bacteroids are inside formed, which change this nitrogen into the ammonia, that is converts this nitrogen into nitrogen compounds, that is called the nitrogen fixation. Now here this root has changed its shape, so it is a modification, because it should have been a cylindrical shape, but we now see that there are knots, there are irregular, these some tuberculous or nodules. So this is the modification, and this modification is for the purpose of nitrogen fixation, and this is also a taproot modification. Next we will take here the nematophores. नेमेटोफोर्स, जैसे कि अभी मैंने कहा, इन्हें ब्रीदिंग रूट्स भी कहा जाता है या इन्हें रेस्पिरेटरी रूट्स भी कहा जाता है, नेमेटोफोर्स. तो एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर लेंगे हेरिटेरिया. हेरिटेरिया लीजिए या राइजोफोरा लीजिए. राइजोफोरा और दीज आर मैंग्रोव्स. रिमेंबर, मैंग्रोव्स स्वैम्प्स में ग्रो करते हैं ऑन द शोर्स ऑफ ओशंस. तो हेरिटेरिया, जिसका कॉमन नेम सुंदरी भी है, क्योंकि एग्जाम्पल एनसीईआरटी पे है इसलिए मैं ले रहा हूं. यहाँ पर जो प्लांट है, एक ट्री है, पेरिनियल ट्री है, ये ग्रो करता है एक समय में जो वाटर लॉज्ड है, एंड दैट टू इट इज हैविंग it is being lodged with the salt water, highly concentrated. Now this is the taproot system. It gives secondary roots. Some secondary roots are their branches grow positively phototropic, that is they become negatively geotropic and grow up above the लेवल ऑफ वाटर. चलिए अगर हम देखते हैं, ये सॉइल है तो यहाँ पर वाटर लॉज्ड कंडीशन है, नीचे स्वैम्प है, तो जहाँ पर भी स्वैम्प होगा तो वहाँ पर जमीन के अंदर तो एयर नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर सेकेंडरी रूट्स बाहर आते हैं. ये रूट्स जब बाहर या रूटलेट्स बाहर आते हैं, इन पे क्रैक्स होते हैं जिन्हें हम लेंटिसेल्स बोलते हैं. इन लेंटिसेल्स के द्वारा यहाँ पर दिस एयर
oxygen and gets diffused and it is transported to the other parts of the root. So in this way, this performs a special function and helping these roots to remain living by exchanging this gas and collecting the gas from the above ground, from the atmosphere, and this air is being transported to other parts of the root. Now these are called nematophores or breathing roots. So it's a very important modification in case of tap roots. The roots are generally positively geotropic. Here these roots have become negatively geotropic. Lastly, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूं बटरस रूट्स के बारे में. बटरस रूट्स या जिन्हें हम कहते हैं प्लैंक रूट्स. You might have seen very tall plants of huge size with unlimited branching. They grow wild somewhere, and for the support purpose, some of the branches came out and grow along the surface of the soil, and since several secondary roots come out and grow along the surface in the form of planks to give the additional support to this tree, huge tree, such roots are called plank roots as they are forming the planks. तो या इन्हें हम कहते हैं बटरस रूट्स. तो इसके एग्जाम्पल, अगर आपके नज़दीक में कोई बड़ा सा वॉलनट ट्री है तो उसने अपनी जो कुछ रूट सेकेंडरी रूट्स बाहर दिए होंगे, सरफेस के साथ साथ ऊपर ही होते हैं, सो एडिशनल सपोर्ट के लिए. तो उन रूट्स के बीच में कुछ गैप्स होते हैं थोड़ी सी, तो जिन्हें हम प्लैंक कहते हैं. तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं प्लैंक रूट्स. दो इट इज़ ऑफ हायर कंसर्न, लेकिन कभी कभी पूछा भी जाता है इन नीट एग्जाम्स. सो दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक. होप कि आपको थोड़ा समझ आया होगा. This video may benefit you. So thank you very much. So next we will take the adventitious root modification, जो हमारा कल का टॉपिक होगा. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम.